Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? Hopefully you will be enjoying good health. May God keep you always healthy and cheerful. Dear students, today we will elaborate another aromatic electrophilic substitution reaction, Friedel-Crafts alkylation. The substitution of alkyl group in the aromatic ring, aromatic nucleus, is Friedel-Crafts alkylation. This reaction is carried out when an aromatic compound is treated with an alkyl halide in the presence of Lewis acid catalyst. For example, when benzene is treated with this alkyl halide in the presence of Lewis acid, alkyl group is substituted on the benzene ring along with the formation of hydrogen halide. Now in this reaction, this alkyl halide is alkylating agent and is electrophile of this reaction. In this alkyl halide, there is a positive charge on the carbon of this alkyl group, and this positive charge is due to the permanent dipole existing due to the difference of electronegativity. Now, this is electrophilic in nature, but the carbon atom of the alkyl halide is electrophilic, but its positive character is not sufficient enough for alkylation of the aromatic species, क्योंकि ये एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होगा और न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल पर ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और इस वजह से ये एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है और इट इज़ नॉट पावरफुल इनफ टू बी अटैक्ड बाय दिस एरोमेटिक रिंग. तो what does the catalyst do? The catalyst interacts with alkyl halide and enhances its positive or electrophilic character. तो वो इंटरेक्शन कैसे होता है आगे हम मैकेनिज़्म में इसकी डिटेल पढ़ेंगे. बहरहाल इस इंटरेक्शन से इसका इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, यानी ये जो अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल है इसका ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये इंक्रीज़ कर जाता है और ये एक वीकर से स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल में चेंज हो जाता है. यूजुअली एल्यूमिनियम क्लोराइड is commonly employed catalyst, but other Lewis acid catalysts may also be used and their order of effectiveness is given below. इसमें ये वाले जो 5-6 इनके अलावा भी हो सकते हैं, बट इनमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी या इफ़ेक्टिविटी वो ये है कि एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है it is the most reactive Lewis acid catalyst और passing through this series ये stanic chloride इनमें से सबसे least reactive है. तो usually this aluminum chloride has been employed in Friedel-Crafts alkylation reactions. Now we come towards the mechanism. Two types of the mechanism have been postulated which differ in the nature or identity of attacking group or electrophile. यानी सिर्फ उनमें इलेक्ट्रोफाइल की नेचर का फ़र्क होगा. तो फर्स्ट मैकेनिज़्म जो है उसमें क्या होता है कि अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल इज़ कार्बोकेटाइन. उसकी नेचर ये है कि वो एक कार्बोकेटाइन है एज ए पार्ट ऑफ द आयन पेयर. ये उस वक्त होता है व्हेन ये मैकेनिज़्म उस वक्त ऑपरेट करता है व्हेन अल्काइल ग्रुप इन अल्काइल हैलाइड इज़ केपेबल ऑफ फॉर्मिंग अ स्टेबल कार्बोकेटाइन. फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स द मैकेनिज़्म विल बी एज फॉलोज. ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड इसका नाम है. तो जब इसके साथ इस अल्काइल हैलाइड को हम अल्काइलेटिंग एजेंट के तौर पर यूज़ करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम
तो ये एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, इसमें से क्लोराइड आयन जो है ये बॉन्ड ब्रेक होगा और क्लोराइड आयन इसमें से फ्री होगा और उसको ये एक्सेप्ट करेगा, और इन दिस वे द फॉर्मेशन ऑफ दिस आयन पेयर जो है दैट विल टेक प्लेस, in which this positive ion is actually a carbocation and electrophile of this reaction. Now this carbocation as a part of this ion pair will be attacked by this aromatic nucleus, aromatic ring, because now it has become a powerful electrophile, फुल्ली पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन है और पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल है। तो अब ये फर्स्ट स्टेप है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जैसा कि जर्नल अरीनियम आयन मैकेनिज़्म होता है, तो ये अरीनियम आयन मैकेनिज़्म है। तो फर्स्ट स्टेप स्लो है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, और इसमें ये सिग्मा कम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो रही है। और देन दिस सिग्मा कम्प्लेक्स undergoes attacked by this counter negative ion like this, from which a chloride ion जो है that gets free and accepts this hydrogen ion, and in this way aromatic character is regained and this alkylated benzene, the final product, is obtained. No, in other cases यानी प्राइमरी और अल्काइल हैलाइड और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड के केस में जो इलेक्ट्रोफाइल होगा इज़ अ पोलराइज्ड कम्प्लेक्स इंस्टेड ऑफ कार्बोकेटाइन, यानी फुल्ली पॉजिटिवली चार्ज कार्बोकेटाइन के बजाय पोलराइज्ड कम्प्लेक्स होगा, क्योंकि इन केसेस में कार्बोकेटाइन जो है वो इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन। व्हेन दिस इज़ यूज्ड इन द रिएक्शन इन द एंड व्हेन ट्रीटेड विद दिस ल्यूअस एसिड कैटलिस्ट, जिसकी रिएक्टिविटी जो है वो एल्यूमिनियम क्लोराइड से कम है, तो नो इट विल फॉर्म अ पोलराइज्ड कम्प्लेक्स लाइक दिस। इसमें जस्ट जो है ये इस क्लोराइड के लोन पेयर और इस आयरन के दरमियान ये अट्रैक्टिव इंटरेक्शन जो है वो डेवलप होगा, जिससे ये बॉन्ड जो है ये वीकन होगा और इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लोराइड की तरफ शिफ्ट होगी, और इन दिस वे अ पॉजिटिव चार्ज इज़ क्रिएटेड ऑन दिस अल्काइल ग्रुप। तो ये जो पोलराइज्ड कम्प्लेक्स है एज ए होल अब इसका अटैक होगा, यानी इसमें कोई कार्बोकेटाइन नहीं बना, बल्कि ये एक पोलराइज्ड कम्प्लेक्स है जिसमें अल्काइल ग्रुप जो है दैट बियर्स और कैरीज पॉजिटिव चार्ज, एंड दिस इसका जो पॉजिटिव चार्ज है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कम्प्लेक्स ये इंक्रीज कर जाएगा, एंड नाउ इट विल अंडरगो अटैक बाय द बेंजीन रिंग in a slow and rate determining step, and this is the formation of sigma complex या valent intermediate which undergoes in next fast step by the attack of chloride ion from this tetrachloropyrrate ion to form this final product toluene. एक्सपेरिमेंटली डिटरमंड रेट लॉ फॉर द रिएक्शन इज़ गिवन एज, जिसमें रेट जो है इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड कंसंट्रेशन ऑफ ल्यूअस एसिड कैटलिस्ट. This rate law is compatible with both pathways given or explained above. अगला पॉइंट यह है कि इस रिएक्शन का नाम फ्रीडल क्राफ्ट्स अल्काइलेशन क्यों है? बिकॉज दिस रिएक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय चार्ल्स फ्रीडल हु वाज अ फ्रेंच केमिस्ट, एंड जेम्स क्राफ्ट्स who was an American mining engineer in 1887. So that is why it is named so. Now we will discuss the evidences supporting these mechanisms. According to above mechanisms, अगर आप ये दोनों mechanism में feature note करें
तो आप देख सकते हैं कि ल्यूइस एसिड का रोल क्या है कि ल्यूइस एसिड इंटरैक्ट्स विद अल्काइल हैलाइड्स, not with the aromatic compound directly, but first it interacts with alkyl halide. This fact is supported by the exchange of radioactive bromine into ethyl bromide from this labeled aluminium tribromide catalyst on their mixing and re-isolation. यानी ये इस बात का सबूत है कि ल्यूइस एसिड कैटलिस्ट जो है वो अल्काइल हैलाइड के साथ इंटरेक्ट करता है। वो ये कि ये वाला कैटलिस्ट, इसमें ब्रोमीन जो है वो लेबल्ड हैं हैविंग हैवी आइसोटोपिक एटम्स। तो जब इन दोनों को, इस अल्काइल हैलाइड को और इस ल्यूइस एसिड कैटलिस्ट को मिक्स किया गया और मिक्सिंग के बाद दोबारा इनको एक दूसरे से आइसोलेट किया गया, तो इट वाज फाउंड कि कुछ जो हैवी आइसोटॉपिक एटम हैं वो इस इथाइल ब्रोमाइड में एक्सचेंज हो गए हैं एंड इट वाज नॉट पॉसिबल विदाउट देयर इंटरेक्शन। तो ये इस बात का सबूत है कि ल्यूइस एसिड कैटलिस्ट अल्काइल हैलाइड के साथ इंटरेक्ट कर सकता है और करता है इस रिएक्शन में। एंड अदर एविडेंस फॉर देयर इंटरेक्शन, इसी इंटरेक्शन की एक और एविडेंस है कि इज़ द एक्चुअल आइसोलेशन ऑफ द सॉलिड 1,1 कम्प्लेक्सेस। तो यानी ल्यूइस एसिड और अल्काइल हैलाइड के दरमियान जो कम्प्लेक्स फार्मेशन होती है एज ए रिज़ल्ट ऑफ इंटरेक्शन, तो वो कम्प्लेक्स जो हैं दे हैव बीन एक्चुअली आइसोलेटेड फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर। फॉर एग्जांपल ये मिथाइल ब्रोमाइड, जिसमें ये 3 जो है गलती से लिखा गया, मिथाइल ब्रोमाइड और एल्यूमिनियम ब्रोमाइड का ये वाला कम्प्लेक्स जो है दैट हैज़ बीन आइसोलेटेड एट वेरी लो टेम्परेचर्स i.e. -78 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ द थर्ड एविडेंस इज़, जिससे ये इस बात की तस्दीक होगी कि वाकई ही इसमें जब फर्स्ट स्टेप इज़ द फॉर्मेशन ऑफ वैलेंट इंटरमीडिएट, तो वैलिडिटी ऑफ वैलेंट इंटरमीडिएट हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड इन दिस पर्टिकुलर अल्काइलेशन रिएक्शन, जिसमें और ये एविडेंस हम पहले अरीनियम आयन मैकेनिज़्म में भी जनरली डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें ये है कि ये 1,3-ट्राईमिथाइल बेंजीन which is commonly known as mesitylene, when it is treated with ethyl fluoride in the presence of this boron trifluoride Lewis acid catalyst at extremely low temperature -80 degree centigrade, so this sigma complex is formed, which is stable at -80 degree centigrade and has been isolated as orange crystalline solid that melts with decomposition at -15 degree centigrade to yield the expected final product। यानी -80 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइसोलेट किया जा सकता है इसे, लेकिन अगर आप इसका टेम्परेचर जो है वो रेज़ कर दें और अप टू -15 डिग्री सेंटीग्रेड तक कर दें, तो फिर ये अगला स्टेप जो है भी होगा, जिसमें लॉस ऑफ हाइड्रोजन आयन हो जाएगा और ये मेल्ट हो जाएगा और इस तरह ये फाइनल अल्काइलेटेड प्रोडक्ट जिसमें ये इथाइल ग्रुप रिंग पर इंट्रोड्यूस हो जाएगा हमें हासिल हो जाएगी। तो इसकी स्टेबिलिटी और आइसोलेशन की वजह वो ये है, एक तो ये है कि इसमें ये 3 मिथाइल ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है और ये एक पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो हैं दे डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन एंड स्टेबलाइज दिस पॉजिटिवली चार्ज इंटरमीडिएट। और दूसरी रीज़न इसमें ये काउंटर नेगेटिव आयन है, टेट्राफ्लोरोबोरेट आयन, जो कि हाई चार्ज डेंसिटी आयन है और जिसका इसके साथ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है और ये एक सॉलिड लैटिस की फॉर्म में चला जाता है। अब अगला पॉइंट ये है कि इसमें अभी तक हमने पढ़ा है कि अल्काइलेशन जो है उसमें जो अल्काइलेटिंग एजेंट है वो अल्काइल हैलाइड है इन द प्रेजेंस ऑफ ल्यूइस एसिड कैटलिस्ट। तो क्या इसके अलावा भी कोई अल्काइलेटिंग एजेंट हैं? तो यस, फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन आल्सो बी यूज्ड एज अल्काइलेटिंग एजेंट्स in the presence of protonic acids as a catalyst.
प्रोटोनिक एसिड से मुराद मिनरल एसिड्स हैं लाइक HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोआयोडिक एसिड or any other mineral acid. These reagents are alkene, alcohol and aldehyde ketones. Let us explain how alkylation takes place with alkenes. For example, when this benzene is treated with this alkene called propene in the presence of HF, then we get this isopropyl benzene as the final product. तो मैकेनिज़्म इसकी एलेबोरेशन ये है कि अल्कीन जो है ये इस पर इसकी प्रोटोनेशन होती है, इस तरह ये हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट करके, तो इस तरह ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन जो कि मोर स्टेबल है इसमें चेंज हो जाएगा, और ये कार्बोकेटाइन एक्टिंग एज इलेक्ट्रोफाइल, ये इस पर रिंग का अटैक होगा. इन दिस वे दिस अल्काइल ग्रुप इज़ इंट्रोड्यूस्ड और सब्सटीट्यूटेड ऑन द रिंग. Another example is the reaction of benzene with cyclohexene, जो कि एक cyclic alkene है in the presence of sulfuric acid at this temperature. It also forms the cyclohexyl benzene following same above mechanism. Now let us see how alkylation take place with alcohols. तो अल्कोहल जो हैं इनके साथ भी alkylation हो जाएगी. फॉर एग्जांपल व्हेन बेंजीन इज ट्रीटेड विद दिस 2-propanol और isopropyl alcohol in the presence of HCl, this isopropyl group again is introduced on the benzene ring. और इसका मैकेनिज़्म ये होगा कि इसमें भी ये अल्कोहल का ये जो हाइड्रोक्सल ग्रुप है इस पर ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, तो owing to this lone pair this hydroxyl group gets protonated with this hydrogen ion, and then now it becomes a good leaving group and leaves readily as soon as it is formed to give rise to this secondary carbocation. और इस कार्बोकेटाइन का उसी तरह फिर बेंजीन रिंग पर अटैक होगा और लॉस ऑफ हाइड्रोजन आयन के बाद ये फाइनल प्रोडक्ट होगी. एल्डिहाइड कीटोन्स यानी कार्बोनिल कंपाउंड्स में आल्सो बी एम्प्लॉयड इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटोनिक एसिड्स. और इसकी एग्जांपल जो है आप ये देख सकते हैं, ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड क्विनोलिन है, उसकी सिंथेसिस का एक मेथड है स्क्रॉप सिंथेसिस, और उसमें ये जो है दैट आल्सो follows या passes through a step which is Friedel-Crafts, which may be termed as Friedel-Crafts alkylation. तो इसमें ये एनालीन का ये इस अल्डिहाइड के साथ अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड प्रोपिनल इसके साथ रिएक्शन करवाया जाता है, और इन दिस वे ये ग्रुप जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाता है एट द अमाइनो ग्रुप. और उसके बाद यहाँ से ये वाला जो अल्डिहाइड ग्रुप है इट अंडरगोज अटैक by the benzene ring, and this way cyclization occurs, and after cyclization from here ये वाटर का एलिमिनेशन होता है और यहाँ से हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होता है. तो ये किया जा सकता है प्रैक्टिकली. तो इस तरह ये रिंग जो है ये भी एरोमेटाइज हो जाएगा, और ओवरऑल वी कैन से an alkyl group has been introduced on the ring and formation of quinoline has occurred. Now another aspect of this reaction suffers many limitations and drawbacks, and these first pitfall or limitation of this reaction is that polyalkylation जो है that occurs. तो चूँकि इसमें अल्काइल ग्रुप्स जो हैं और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड एक्टिवेटिंग, अल्काइल ग्रुप जो है वो रिंग में इंट्रोड्यूस होता है और वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और एक्टिवेटिंग है, रिंग को एक्टिवेट कर देते हैं टुवर्ड्स फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, एंड प्रोडक्ट जो है वो दैट बिकम्स मोर रिएक्टिव देन द स्टार्टिंग reactant
तो दैट इज़ वाई जो प्रोडक्ट है इट सेल्फ अंडरगो फर्दर अल्काइलेशन रिएक्शन and mixture of polyalkylated products are obtained. For example, when toluene is treated with this methyl chloride in the presence of aluminium chloride, we get this complicated mixture of alkyl benzenes, polyalkylated products. So if you want to get only this monoalkylated product, so this product can be obtained in good yield. However, if a large excess of starting material is used, यानी आप अल्काइलेशन जो है वो इस तरह करें कि जो अल्काइल हैलाइड है इसके मुकाबले में जो एरोमेटिक कंपाउंड है वो लार्ज एक्सेस में लें, जैसे ये 15:1 की रेशो के साथ जब ये रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो वी गेट 83% जो है इथाइल बेंजीन, यानी मानो अल्काइलेशन ज़्यादा से ज़्यादा होगी और पोली अल्काइलेशन जो है उसकी टेंडेंसी रिड्यूस हो जाएगी एंड दैट कैन बी अवॉइडेड इन दिस वे. सेकंड ड्रॉबैक इज़ द रीअरेंजमेंट. We always get rearranged product along with the normal or expected product. So as this reaction involves the formation of कार्बोकेटाइन पोलराइज्ड कॉम्प्लेक्स, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले स्टडी किया, या तो कार्बोकेटाइन होता है इलेक्ट्रोफाइल या पोलराइज्ड कॉम्प्लेक्स होता है, तो विच हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू रीअरेंज. अब ये जो पोलराइज्ड कॉम्प्लेक्स है या कार्बोकेटाइन है, इसमें कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये रीअरेंज जो है वो हो जाता है. इफ़ सच रीअरेंजमेंट लीड्स टू मोर stable carbocation, then a mixture of normal and rearranged product is obtained. For example, when benzene is treated with this 1-chloropropane or N-propyl chloride in the presence of aluminium chloride, we get this mixture of product. This is N-propyl benzene and this is isopropyl benzene. तो ये रीअरेंज प्रोडक्ट है और ये नॉर्मल और एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है. तो रीअरेंज प्रोडक्ट जो है वो मेजर प्रोडक्ट के तौर पर हमें हासिल हो रही है. तो अब इसकी रीज़न क्या है कि जब पहले स्टेप में इस प्राइमरी अल्काइल हैलाइड और लिवोसिलिक कैटलिस्ट का इंटरेक्शन होता है, तो ये पोलराइज्ड कॉम्प्लेक्स बनता है जिसमें ये कार्बन जिस पर पॉजिटिव चार्ज है ये प्राइमरी कार्बन है, और ये लेस स्टेबल जो है इस वजह से, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज जो है वो प्राइमरी कार्बन पर है, तो ये लेस स्टेबल है. तो इसमें क्या होता है कि ये जो कार्बोकेटाइन है ये इसमें 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होती है, यानी यहाँ से ये आप देख रहे हैं कि एक हाइड्राइड आयन, ये हाइड्रोजन एटम अलोंग विद दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इस एडजेसेंट कार्बन पर माइग्रेट कर जाता है, तो इसको हाइड्राइड शिफ्ट कहते हैं. तो इससे ये पॉजिटिव चार्ज जो है आप ये देख सकते हैं कि ये इस कार्बन पर आ जाता है जो कि सेकेंडरी कार्बन है, और इस वजह से ये कम्प्लेक्स जो है सेकेंडरी नेचर का है, तो इट विल बिकम मोर स्टेबलाइज्ड बीइंग सेकेंडरी इन नेचर. सिमिलरली ये एक और एग्जांपल है जिसमें बेंजीन जो है इस प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के साथ जो कि 1-क्लोरोब्यूटेन है, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये CH3 है, CH2 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 एंड C, तो इसे N-ब्यूटाइल क्लोराइड भी कह सकते हैं, 1-क्लोरोब्यूटेन भी है. तो इसमें N-ब्यूटाइल ग्रुप है इस प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में. तो ये सिर्फ N-ब्यूटाइल ग्रुप जो है ये यानी अनरीअरेंज्ड अल्काइल ग्रुप सिर्फ 35% प्रोडक्ट इसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट होती है, जबकि 65% में ये अल्काइल ग्रुप रीअरेंज होके तो ये आइसोब्यूटाइल ग्रुप में चेंज हो गया. तो एन ब्यूटाइल बेंजीन की बजाय ये आइसोब्यूटाइल बेंजीन जो कि रीअरेंज प्रोडक्ट है वो डोमिनेट कर जाती है और 65% जो है वो हमें हासिल होती है. तो इसकी रीज़न भी ये है कि जब ये लिवोसिलिक के साथ इंटरेक्ट करता है तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है जो कि प्राइमरी कार्बन है, और बाद में यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट होती है तो इस पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर चला जाता है जो कि सेकेंडरी होता है. बीइंग सेकेंडरी इट इज़ मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन.
तो फिर इस स्टेबल कार्बोकेटाइन का अटैक होता है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट डोमिनेट कर जाती हैं। अब ये जो रीअरेंजमेंट है, इसका जो एक्सटेंट है, टू हाउ मच एक्सटेंट द रीअरेंज प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड, इट डिपेंड्स upon the three factors. First is structure of alkyl halide, then the nature of the catalyst, then the reactivity of the aromatic compound. These rearrangements are especially common with primary alkyl halide. यानी अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर तीन तरह का alkyl halide का, प्राइमरी alkyl halide, सेकेंडरी alkyl halide एंड टर्शरी alkyl halide। तो कॉमनली जो है प्राइमरी alkyl halide they readily undergo rearrangements if the structure of alkyl halide that allows। और इसकी वजह ये है कि प्राइमरी कार्बोकेटाइन लेस स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी एंड टर्शरी कार्बोकेटाइन। तो लेकिन इसकी आप एग्जांपल जो हैं, ये ऊपर जो एग्जांपल दी गई हैं इसमें यही हो रहा है कि पहले प्राइमरी, इस एग्जांपल में भी और इस एग्जांपल में भी प्राइमरी जो कार्बोकेटाइन है वो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में चेंज होता है टू गेट मोर स्टेबिलिटी। देयर आर हाउएवर cases in which tertiary halide also rearrange in these reactions. For example, ये tertiary pentyl chloride है, तो जब इसको इस ल्यूइस एसिड कैटलिस्ट की मदद से ये रिएक्शन किया जाता है तो ये नॉर्मल प्रोडक्ट है और ये रीअरेंज प्रोडक्ट है। तो अब ये इसमें तो पहले टर्शरी कार्बोकेटाइन बनता है, यानी ये क्लोराइड जब इधर लीव करेगा तो यहाँ चार्ज आएगा, तो बाद में यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट जो है वो इधर होगी और ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन भी बन सकता है। तो दोनों के मुताबिक जो है वो हमें प्रोडक्ट हासिल होगी। और यही एक्सटेंट ऑफ रीअरेंजमेंट जो है, ये अगर इसी रिएक्शन में आप फेरिक क्लोराइड कैटालिस्ट यूज़ करें तो ये ओनली नॉर्मल प्रोडक्ट वी गेट इंस्टेड ऑफ रीअरेंज प्रोडक्ट। तो अब इसमें क्या रीज़न है, इसमें दूसरा फैक्टर आ जाता है कि इसमें रिएक्टिविटी ऑफ ल्यूइस एसिड कैटलिस्ट जो है वो लो है, और इस केस में जो है ये टर्शरी कार्बोकेटाइन इस तरह ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में चेंज नहीं होगा और हमें नॉर्मल प्रोडक्ट जो है वही हासिल होगी। एक और एग्जांपल जिसमें ल्यूइस एसिड की रिएक्टिविटी कैसे इफ़ेक्ट करती है रीअरेंजमेंट के एक्सटेंट को, ये बेंजीन का रिएक्शन है विद नियोपेंटाइल क्लोराइड, जो कि एक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है क्योंकि इसमें क्लोराइड प्राइमरी कार्बन के साथ लगा हुआ है। तो अब इस नियोपेंटाइल क्लोराइड में जब ये एल्यूमिनियम ट्राई क्लोराइड के साथ ये की मौजूदगी में रिएक्शन किया जाता है तो वी गेट ऑलमोस्ट फुली द रीअरेंज प्रोडक्ट, यानी इसमें कोई जो है वो नॉर्मल प्रोडक्ट हासिल नहीं होगी, ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन सारा रीअरेंज हो जाएगा। और ये रीअरेंजमेंट क्यों होगी, क्योंकि जब इस प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का इस एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ ये कम्प्लेक्स बनेगा तो ये कम्प्लेक्स जो है रीअरेंज हो जाएगा। और ये रीअरेंज कैसे होगा कि इस कार्बन पर ये 3 मिथाइल ग्रुप हैं, इन 3 मिथाइल में से एक मिथाइल ग्रुप जो है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, इसको मिथाइल शिफ्ट कहते हैं। तो इस मिथाइल शिफ्ट के नतीजे में अब ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर होगा। एज ए होल तो ब्रैकेट पर शो किया हुआ, लेकिन एक्चुअली इस कम्प्लेक्स में ये इस कार्बन पर है और इस कम्प्लेक्स में ये इस कार्बन पर है, और ये टर्शरी कार्बन है और ये प्राइमरी कार्बन है। तो इन दिस वे टर्शरी कार्बोकेटाइन या पोलराइज्ड कम्प्लेक्स वो रीअरेंज होकर प्राइमरी कार्बोकेटाइन रीअरेंज होकर टर्शरी कार्बोकेटाइन में चेंज हो जाता है। और अगर यही जो है रिएक्शन फेरिक क्लोराइड की मौजूदगी में करें तो रिज़ल्ट इज़ द अपोजिट, ये कि ऑलमोस्ट फुली अनरीअरेंज प्रोडक्ट हमें हासिल होगी। तो इसमें फ़र्क तो सिर्फ अगर आप नोट करें तो सिर्फ कैटलिस्ट का है, इधर ये ल्यूइस एसिड कैटलिस्ट एल्यूमिनियम क्लोराइड है और इधर फेरिक क्लोराइड है। तो इसमें ये प्रिजम्पशन ये है कि ये फेरिक क्लोराइड जो है इसके साथ जो पोलराइज्ड कम्प्लेक्स है इट इज़ नॉट पोलराइज्ड अनफ टू अलाउ द
रीअरेंजमेंट। तो जबकि इसमें ये इस पोलराइज कम्प्लेक्स में एल्यूमिनियम क्लोराइड है जिसकी रिएक्टिविटी इफेक्टिवनेस जो है वो ज़्यादा है और इट इज़ सफिशेंटली पोलराइज्ड टू अलाउ द रीअरेंजमेंट। नो द नेक्स्ट पॉइंट इज कि रीअरेंजमेंट ऑफ अल्काइल ग्रुप इज़ नॉट अ प्रॉब्लम इफ अल्काइल ग्रुप इज़ नॉट अ रीअरेंजमेंट प्रोन। फॉर एग्जांपल ये टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड है तो ये इट डज़ नॉट अलाउ द रीअरेंजमेंट और सिर्फ नॉर्मल प्रोडक्ट हमें हासिल होगी। तो उसकी रीज़न ये है कि ये जब क्लोराइड आयन जो है इसमें से निकलेगा तो ये टर्शरी कार्बोकेटाइन बनेगा और अगर ये इधर से हाइड्राइड शिफ्ट हो तो कार्बोकेटाइन ये जो है ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन होगा और प्राइमरी कार्बोकेटाइन और टर्शरी कार्बोकेटाइन में स्टेबिलिटी का एक वास्ट डिफरेंस होता है दैट डज नॉट अलाउ द हाइड्राइड शिफ्ट। तो दैट इज़ वाई इसमें सिर्फ टर्शरी कार्बोकेटाइन बनेगा और नॉर्मल प्रोडक्ट हासिल होगी। एन अदर ड्रॉबैक फ्रॉम विच this reaction suffers is reversibility or de-alkylation of the reaction। यानी ये रिएक्शन जो है रिवर्सिबली अल्काइल ग्रुप जो है फ्रॉम द प्रोडक्ट अल्काइल बेंजीन वो रिवर्सिबली ब्रेक होके तो वापस प्रोडक्ट में रिएक्टेंट में भी चेंज हो सकता है। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल जो है पहली एग्जांपल जो है वो ये है कि व्हेन इथाइल बेंजीन इज़ ट्रीटेड विद दिस HF। इथाइल बेंजीन ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की प्रोडक्ट है और HF भी प्रोडक्ट है। तो जब इनका लिवस एसिड सेम लिवस एसिड कैटलिस्ट इस रिवर्स रिएक्शन को भी कैटलाइज कर रहा है तो जब ये इस तरह इस कैटलिस्ट की मौजूदगी में ये रिएक्शन किया जाएगा तो वी गेट मिक्सचर ऑफ these products। 45% बेंजीन 10% जो है वो इथाइल बेंजीन रह जाएगी बाकी 45% जो है वो बेंजीन और ये 45% मेटा या 1,3-डाइथाइल बेंजीन में चेंज हो जाएगी। तो दिस कैन ओनली अकर कि ये जो इथाइल ग्रुप जो है इसकी यहाँ से क्या हो डी अल्काइलेशन हो तो ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट जो बन सकती हैं। दूसरी एग्जांपल जो है ये है कि ये पैराजाइलिन है 1,4-डाइमिथाइल बेंजीन। तो इसको जब ICL ये भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की एक प्रोडक्ट है अल्काइलेटेड बेंजीन है डाई अल्काइलेटेड बेंजीन है तो इसको जब ICL के साथ ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड तो इन दिस वे दिस पैराजाइलिन is converted to more stable metaxylene। It is also due to the reversibility of the reaction। अगर ये रिएक्शन इस तरह रिवर्सिबल ना हो तो ये पैराजाइलिन जो है वो मेटाजाइलिन में चेंज नहीं हो सकता। तो इसमें ये अल्काइल ग्रुप जो है ये इस पोजीशन से ये देखें ये शिफ्ट होके तो ये इस पोजीशन पर आ रहा है तो दिस शोज दैट डी अल्काइलेशन हैज अकर्ड। इसी तरह ये बेंजीन को जब इथाइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करवाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम ट्राइब्रोमाइड ब्रोमाइड तो वी गेट 1,3,5 ट्राइथाइल बेंजीन। तो ये जो है फर्स्ट इसमें इथाइल बेंजीन बनेगा और फिर सेकंड इथाइल ग्रुप आना तो आर्थो और पैरा पोजीशन पर चाहिए और आता भी है लेकिन रिवर्सिबली उसकी डी अल्काइलेशन होती है और वो आर्थो और पैरा से शिफ्ट होकर ये मेटा पोजीशंस पर आ जाता है। इट इज़ आल्सो दिस डी अल्काइलेशन एंड माइग्रेशन एंड आइसोमराइजेशन इज आल्सो ड्यू टू द रिवर्सिबिलिटी ऑफ दिस स्टेप। Another application of this reversibility phenomena of this reaction is कि इसमें जो टर्शरी अल्काइल ग्रुप्स होते हैं आर मोस्ट रेडली इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द अल्काइलेशन एंड कैन ईजिली बी डी अल्काइलेटेड टू गिव द कार्बोकेटाइन बैक। फॉर एग्जांपल ये टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है तो या टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन है तो इसमें ये टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप कैन ईजिली बी डिसलोकेटेड बाय ट्रीटिंग अंडर दीज रिएक्शन कंडीशंस। आप ये देख सकते हैं कि ये टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप हैज़ बीन removed or de-alkylated very easily। So now this feature
makes this tertiary butyl group to be used as a protecting group in the synthesis of organic compound. तो इसकी elaboration ये एक example से है कि आप देखें when toluene is treated with this tertiary butyl chloride, इसमें ये 3 जो है वो नहीं होगा, तो इसमें ये टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप पैरा पोजीशन पर इंट्रोड्यूस हो जाएगा। आर्थो पर इसलिए नहीं कि आर्थो पर स्टेरिक हिंड्रेंस है, ये बल्कि ग्रुप है, तो ये ऑलमोस्ट होली पैरा पोजीशन पर इसकी अल्काइलेशन होगी, तो इट कैन ईजिली बी इंट्रोड्यूस्ड इन दिस कंपाउंड एट पैरा पोजीशन। आफ्टर दैट when acylation of this compound is carried out, so that will occur at this ortho position, because now para position has been blocked, has been protected by this tertiary butyl group, or it is acting as a protecting group. तो बाद में आप ये protecting group को HCl और AlCl theory के साथ easily, जैसा कि अभी हमने ऊपर ये स्टडी किया है कि it can easily be dismounted from this position, and in this way we get only ortho product. तो ये हमारी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है, तो इस तरह आप ये रिक्वायर्ड प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं बाय प्रोटेक्टिंग पैरा पोजीशन विद टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप, अदरवाइज वी विल गेट पैरा प्रोडक्ट इंस्टेड ऑफ ऑर्थो प्रोडक्ट. Another drawback of the reaction is that the presence of electron withdrawing group on the aromatic ring is generally sufficient to inhibit the Friedel-Crafts alkylation reaction. यानी वो aromatic compound जो कि deactivated हैं, जिनमें electron withdrawing group लगा, like nitrobenzene, like benzaldehyde, like benzoic acid, ये electron withdrawing group इन पर लगा हुआ है, तो ये Friedel-Crafts alkylation इनकी नहीं की जा. Thus, nitrobenzene is often used as a solvent for the reaction because AlCl3 dissolves readily in it, thus avoiding the heterogeneous reaction. तो नाइट्रोबेंजीन जो है अक्सर अल्काइलेशन रिएक्शन में सॉल्वेंट के तौर पर यूज़ की जाती है. एक और ड्रॉबैक या पिटफॉल जो है इस रिएक्शन का वो ये है कि आप देख सकते हैं ये अमाइंस हैं, although they are very activating and reactive towards other electrophilic substitution reactions, लेकिन इनकी हम अल्काइलेशन जो है Friedel-Crafts alkylation कैरी आउट नहीं कर सकते, एंड इट इज़ ड्यू टू दी फॉर्मेशन ऑफ दिस कम्प्लेक्स. तो इसमें ये अमाइनो ग्रुप जो है ये ल्यूइस एसिड कैटलिस्ट के साथ इस कम्प्लेक्स फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है, और इससे क्या होता है, दिस प्रिवेंट्स द कम्प्लेक्सेशन ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड विद अल्काइल हैलाइड. तो अल्काइल हैलाइड के साथ फिर एल्यूमिनियम क्लोराइड का कम्प्लेक्स नहीं बनता, बिकॉज इसकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है. इट इज़ no longer, it remains no longer available for the formation of complex with alkyl halide. Moreover, आप देख सकते हैं कि इसमें जो अमाइनो ग्रुप है is converted into powerful electron withdrawing group. ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, लेकिन इस कम्प्लेक्स में इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और अब ये इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप बन जाता है जो रिंग को डीएक्टिवेट कर देता है, और इस वजह से फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक जो है यानी अल्काइलेशन रिएक्शन इसका नहीं किया जा सकता. तो दिस वाज ऑल अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ Friedel-Crafts alkylation, and this is the end of this lecture number 4, Friedel-Crafts alkylation. Allah Hafiz.